Welcome, everybody. Let's start our new episode of Advantage, where we actually learn how to read newspapers and how to extract relevant gems from a newspaper article. A gem which can be extremely relevant and extremely useful for the UPSC exam perspective. So, this article that we have in front of us is like an editorial from 22nd of February from the. So let's start. It's converting court case backlogs into treasure trove. Treasure trove. What is a treasure trove? Treasure trove very important term you can add to your vocabulary. Treasure troves का मतलब आप हिंदी में समझ लो खजाना. A mine of precious stuffs, costly stuffs. So this editorial is about converting court cases को convert कर दो, court case backlog को, you the backlog of court cases को convert कर दो into a treasure trove. How? Let's discuss. So this is the introductory part. In this part, the writer will be informing us about giving us a background of the number of cases in High Court and Supreme Court. Okay, and how many cases are overall pending. So every Chief Justice of India coming into office has a specter. You should be aware of a specter of the legal system's backlog haunting him or her, or does every senior and concerned member of the higher judiciary. So it is talking about कि whenever Chief Justice of India is coming into office, taking reign of the judiciary, Indian judiciary, that particular person, that particular justice is has to deal with the specter of legal system's backlog. The legal system backlogs haunt him or her, as does every senior and concerned member of higher judiciary. So it is not just a chief justice, whosoever is the member of higher judiciary, not even higher judiciary, whosoever is a stakeholder in the judicial system, दैट पर्सन इज गेटिंग हॉन्टेड, परेशान हो रहा है वो बैकलॉग ऑफ केसेस को देख करके. तो टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू शुड बी नोटिंग डाउन फॉर योर एनरिच्ड वोकैबुलरी. इट इज एन एवर प्रेजेंट फेनोमेनन. एवर प्रेजेंट फेनोमेनन, ये फेनोमेनन हमें ना हमेशा से चलता आया है. Currently, Supreme Court has 82,000 cases and High Courts over 62 lakh cases and lower courts close to 5 crore. Three facts are given over here: 1, 2, and 3. UPSC won't be asking this कि how many cases are pending in the Supreme Court or lower court or high court, but you can remember this fact, because suppose that there is a question in the main examination regarding backlog of cases in India, you can quote this fact, very basic fact. So this basic fact you can quote your answer. It will act as a value addition to your answer. Okay, so it is an adversarial system. What is the meaning of adversarial? Like it is like something when few things are in a conflict के position में हो, opposition के position में हो, एक दूसरे को conflicting वाला situation हो, then it is called adversarial system. It is not that our judges are not hardworking or efficient. The great majority of them are. But we are a country with a vast population that is used to thinking that the court will resolve disputes with whoever it may be, neighbor, shareholder, supplier, government, etc. It is saying कि it is not that our judges are not hardworking. Our judges are hardworking. ऐसा नहीं है कि हमारे judges hardworking नहीं है और efficient नहीं है. वो तो हैं, जजेस हमारे हार्डवर्किंग भी हैं, एफिशिएंट भी हैं. तो सारे नहीं हैं, ग्रेट मेजोरिटी ऑफ देम, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस. तो मोस्ट ऑफ द आवर जजेस आर एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग. बट हमारा देश एक ऐसा देश है वेर देर इज अ वास्ट पॉपुलेशन. Okay, and majority of that population thinks that the court will resolve disputes with whoever it may be. इतना वास्ट पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि कैसा भी डिस्प्यूट हो, कोर्ट से ही उसको रिजॉल्व करा लेंगे. चाहे वो पड़ोसी से हो, शेयर होल्डर से हो, हमारा कोई सप्लायर हो, सरकार से भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई मुद्दा आ गया, डिस्प्यूट हो गया, चाहे किसी से हो, चोरी का हो, किडनैपिंग का हो, किसी ने किसी की बकरी चुरा ली, गाय चुरा ली, किसी ने जबरदस्ती किसी की जमीन लिखवा ली. हर तरीके के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पॉपुलेशन के लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है कि उसका सॉल्यूशन इज लाइंग इन द कोर्ट.
So this is actually a foundation, you can say कि this is a foundational issue. फाउंडेशनल इशू है, आप इसको मान के चलिए। तो अगर रीजन वगैरह आपको कहीं कोट करना हो, रीजन वगैरह अगर देना हो, बैकलॉग ऑफ केसेस के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया, अगर उसमें रीजन देना है, तो एक बहुत सा कोर सा एक इशू है, फाउंडेशनल इशू है जो आप दे सकते हैं। कि बैकलॉग ऑफ केसेस होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ का रिजोल्यूशन, सारे मुद्दों का रिजोल्यूशन कोर्ट से ही हो। ठीक है, वी हैव वन ऑफ द लोवेस्ट, it is saying one of the lowest, not the lowest, judge to population ratio. 21 judges for every million citizen. Again, हर 1 मिलियन सिटीजन मीन्स हर 10 लाख सिटीजन्स के ऊपर एक जज है। 10 लाख लोग हैं, उनके ऊपर एक जज है, मतलब पॉपुलेशन हमारा इतना वास्ट है और नंबर ऑफ जजेस उस प्रोपोर्शन में नहीं है। और ये जो रेशियो है, दिस इज इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट। Again, this is a fact which is like kind of ki UPSC won't be asking ki what is the ratio of population to judge ratio in India, but again it is such a fact that if you are quoting this fact in your answers in mains, obviously your answer will be becoming a very valuated one. And we rely on adversarial system. ये पुअर जज टू पॉपुलेशन रेशियो है, बट वी रिलाई ऑन एडवर्सरियल सिस्टम, which means that virtually every case sees multiple interim applications during its passage and plural appeals after the first passage is crossed. Okay, what it means? Let's understand this. Suppose you file a case in the lower judiciary in your district court. Okay, you file a case. आफ्टर द फाइलिंग द केस, योर ऑपोजिशन पार्टी जिसके खिलाफ आपने केस किया है, दैट पर्सन विल ऑल्सो फाइल इट्स ओन वर्जन। वो भी अपना स्टेटमेंट देगा। आपने केस फाइल करा, सपोज कीजिए आपने केस करा कि हमारी जमीन जबरदस्ती लिखवा ली इस बंदे ने, ए ने केस करा कि बी ने उसकी संपत्ति जबरदस्ती लिखवा ली, केस कर दिया कोर्ट में। अब बी क्या करेगा? काउंटर तो देगा ना कि नहीं भैया हमने जबरदस्ती नहीं लिखवाई है, ठीक है, हमने सोच समझ के लिखवाया है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसका जवाब फिर से ए देगा और उसका जवाब फिर से बी देगा। ओके, देन विटनेसेस होंगे, देन आर्गुमेंट्स होंगे, और ये मल्टीपल, इट इज सेइंग कि मल्टीपल इंटरिम एप्लीकेशंस। कभी कोई मोहलत ले लेगा, कोर्ट विल बी एडजर्न बिकॉज कोई गवाह नहीं आया, ठीक है, कभी आर्गुमेंट होल्ड पे चला गया। तो व्हाट इट सेज, देयर आर मल्टीपल इंटरिम एप्लीकेशंस ड्यूरिंग इट्स पैसेज एंड प्लूरल अपील्स आफ्टर द फर्स्ट पैसेज इज क्रॉस्ड। अगर इन सब मुद्दों को लेकर के कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे भी दिया, तो वर्डिक्ट फिर से चला जाएगा अपील में। ठीक है, अपील मीन्स हायर कोर्ट में। तो इट इज सेइंग कि प्लूरल अपील्स। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो एक केस which ideally should have been resolved that remains pending till the final appellant level। तो ये भी एक सेकंड इशू है। तो फर्स्ट इशू वी फाउंड कि स्टेक होल्डर बेसिस पे दैट we seek resolution from our court for each and every small matter. So this is the first issue you can say. Okay, this is the second issue you can say ki adversarial system, interim applications, plural appeals. Okay, so these are actually very good key terms. You can use these key terms in your exam mains answers. These will fetch you better marks. We also have shortages of infrastructure and capacity. Then the writer is pointing out the issue of shortage of infrastructure and capacity in terms of brick and mortar. Brick and mortar means like buildings, proper, efficient, sustainable buildings नहीं है हमारे पास। कोर्ट लगाने के लिए चाहिए ना, जज साहब बैठेंगे, लोग आएंगे, बैठेंगे, बहस होगी, तो हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है। वी ऑल्सो लाइक फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। So this is, you can say, the third issue highlighted by the writer: shortage of infrastructure and capacity. Just keep the judiciary going on functional mode is a Herculean task. What is the meaning of Herculean task? Hercules was a very powerful, very difficult person. So Herculean task means something, a task which is very difficult one, very hard one. So just keeping the judiciary going on functional mode is a Herculean task. It is very difficult to keep the judiciary going on functional mode, means keep the judiciary working efficiently. So daunting. What is the meaning of daunting? Daunting is, again, it means it is very difficult by itself, that reform and restructure, while certainly the subject of well meaning and some well thought out initiatives, rarely gain the prominence and push to make system game changing.
A kind of generic statement you could say. The writer is saying that though we understand ki these are the problems, these are the issues, and the task is also very difficult one, is still our well thought out initiatives rarely gain the prominence. Prominence, what is the meaning of prominence? Prominence means importance. तो हमें पता है कि हमारे सबको पता है कि केसेस का बैकलॉग क्यों है, चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। बट वो सब पता होने के बावजूद हमारे जो कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग दैट मच लाइमलाइट। हमारे जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं वो उतने अच्छे से लेवरेज उनका नहीं हो पा रहा, अच्छे इनिशिएटिव्स का उतने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, ताकि जो गेम है ना, ताकि वो जो स्थिति है वो बदल सके। ठीक है। नेक्स्ट राइटर विल डिस्कस व्हाट आर दोज वेल थॉट आउट इनिशिएटिव्स। वो इनिशिएटिव्स कौन है जिनके ऊपर राइटर साहब भी आगे डिस्कस करेंगे। डाटा गवर्नेंस is one field where sensible classification will avoid repetitive engagement and make for quicker disposal. डाटा गवर्नेंस, डाटा गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कीवर्ड है। इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हैं इस टर्म को। तो डाटा गवर्नेंस अपने की टर्म में आप ऐड कीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से इसके ऊपर आप काम कीजिए। हियर व्हाट डाटा गवर्नेंस मीन्स is like having an effective and efficient data, or you can say कि database of cases, be it pending one or resolved ones. Okay, so if we are having effective data, the data can be utilized for quicker disposal. How it will be utilized for quicker disposal? Repetitive engagement can be avoided. जस्ट अंडरस्टैंड दिस वे कि सपोज एक बंदे ने केस कर दिया यहाँ, ठीक है, बी ने उसको काउंटर करा, दोनों का एक लंबे अरसे के बाद दोनों का रिजोल्यूशन हुआ। रिजोल्यूशन होने के बाद कोई छोटा सा मैटर अनरिजॉल्व रह गया, उस में छोटे से मैटर को लेकर के ए या बी ने फिर से केस कर दिया। ठीक है, तो दैट मैटर अगेन रिमेन्स पेंडिंग। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा गवर्नेंस हो, डाटा का वेल स्टॉक डाटा स्टैक डाटा हो हमारे पास, तो इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस टू सर्व इन एडहॉक कैपेसिटी। Ad hoc appointment of judges in High Court has been in news recent times, and this topic is important for prelims and mains as well. Like, what is meant by ad hoc judges? Okay, ad hoc means literal meaning of ad hoc is temporary basis. So, what are ad hoc judges in High Court? Okay, or Supreme Court you can say, or judiciary you can say. What are the constitutional provisions? I mean articles. Okay, articles. So, articles and provisions. So, it is saying appointing retired judges, and this topic is important for prelims, this I was saying, and also for mains. Appointing retired judges to serve in ad hoc capacity does help to ameliorate. What is the meaning of ameliorate? Ameliorate means to improve the situation to a limited extent. Ad hoc judges को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो नो डाउट सिचुएशन कुछ इंप्रूव होगा, बट उसका जो इम्पैक्ट होगा लिमिटेड होगा। Wider perspective solutions would require a focus on swaths of litigation, for example, landlord tenant disputes and check bouncing cases, to see whether tweaking the law can make it less advantageous to have the matter taken to court. कह रहा है कि वाइडर पर्सपेक्टिव सॉल्यूशंस होने चाहिए। जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एडहॉक जजेस के लेवल पे नहीं होना चाहिए, हमें कुछ बड़े सॉल्यूशंस देखने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसा कर दें कि कोर्ट के थ्रू रिजोल्यूशन लेना अगर ज़्यादा कॉस्टली अफेयर हो जाए, अगर पार्टीज को, लोगों को ये लगने लगे कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल है, और दूसरा सॉल्यूशन अगर अपना लें, मिलजुल के मिल बांट के अगर डिस्कस करके मीडिएट करके अगर रिजोल्यूशन ले लें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये वाला सिचुएशन होगा पर्टिकुलरली फॉर पेटी केसेस, लाइक मकान मालिक किराएदार का बीच में झगड़ा हो गया, चेक बाउंस हो गया। ये जो छोटे मोटे केसेस हैं, इन केसेस को जुडिशियरी लेवल पे पहुंचने से बचना चाहिए, रेगुलर कोर्ट्स बचने से पहुंचने से बचना चाहिए, ये सजेशन दिया जा रहा है। और ये कैसे बचना चाहिए ये हम आगे के लाइंस सेंटेंसेस में देखेंगे। कंपनसेटरी और इवन punitive costs आर कॉमनली यूज्ड अब्रोड। अब्रोड हियर मींस आउटसाइड द कंट्री, दूसरे देशों में, आउटसाइड इंडिया, टू डिटर फ्रीवलस। डिटर का मतलब रोकना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर
नेगेटिव इम्पैक्ट देना कि इसका ऐसा काम कर लोगे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज मीन डिटेल। फ्रिवलेस मीन्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पेटी काइंड ऑफ। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कंपनसेटरी और इवन प्यूनिटिव कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट की बात की जा रहा है। कंपनसेटरी या प्यूनिटिव कॉस्ट ऐसा होना चाहिए। कंपनसेटरी का मतलब आपने कुछ गलत कर दिया तो दूसरे वाले को हर्जाना दे दो। प्यूनिटिव का मतलब आपको पनिशमेंट के रूप में कॉस्ट लग जाए। सपोज कीजिए कि आप फालतू के केसेस लॉन्च कर रहे हैं, कोर्ट में लेकर के आ रहे हैं और बाद में पता चला ये केस तो बिल्कुल बेसलेस सा है, तो उस केस में उस बंदे के ऊपर, उस पार्टी के ऊपर कॉस्ट लगना चाहिए, फाइन लगना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड तरीके से बात कही गई है, पर ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पॉइंट को अपने आंसर्स के वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं कि टू रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस, compensatory or punitive costs can be imposed for petty litigations। छोटे मोटे केसेस के लिए हम इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये वे फॉरवर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। पर इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इस तरीके के कॉस्ट जो हैं, दे आर कॉमनली यूज्ड अब्रोड, विदेशों में तो बहुत आसानी से यूज हो रहे हैं, बट नॉट इन इंडिया। ओके, अननेसेसरी लिटिगेशन को रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए इस तरीके के कॉस्ट विदेशों में यूज हो रहे हैं, बट वी यूज देम, मीन्स वी इंडियंस यूज देम रेयरली। हम इंडिया में इस चीज का यूज नहीं करते, कॉस्ट ज्यादा नहीं लगाते फ्रिवलेस और अननेसेसरी केसेस के लिए, सिंस वी प्राइज एक्सेस टू जस्टिस एंड वांट टू अवॉइड रोड ब्लॉक्स। हमारी पॉलिसी क्या रही है कि एक्सेस टू जस्टिस इजी होना चाहिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा पहुंच जाओ कोर्ट में, कोर्ट में केस फाइल कर दो। और हमें लगता है कि हमने एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नो डाउट अच्छी बात होगी, बट इसके रिपरकशन हैं, इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो आप इसको समझ सकते हैं, कॉस्ट जो है, प्यूनिटिव कॉस्ट या कॉम्पनसेटरी कॉस्ट वर्सेस एक्सेस टू जस्टिस। तो कनेक्ट किया गया है दोनों को। अब एक्सेस टू जस्टिस को आप राइट से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट टू जस्टिस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कनेक्ट किया गया है। आप ऐसा मान सकते हैं कि राइट टू जस्टिस के लिए कॉस्ट लगाना कुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फालतू के केसेस कोई लॉज ना करे, उसके लिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया राइट टू जस्टिस के ऊपर, ठीक है। तो अपने आप में बहुत ही वैल्यू लोडेड स्टेटमेंट है ये। ज़्यादा डिटेल में राइटर साहब ने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, पर इन चीज़ों को आपको एनालाइज करके समझना होगा। और इन चीज़ों को इफ़ यू आर रिफ्लेक्टिंग दीज पॉइंट्स इन योर आंसर, इट विल सर्टेनली फेच यू बेटर मार्क्स। द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम का मतलब ऐसे मत सोचिए कि कमरे में एक हाथी आ गया। एक्चुअली इसका लिटरल मीनिंग तो होगा, और इसका मतलब ऐसे है कि एलिफेंट इन द रूम मतलब कमरे में जो सबसे बड़ा समस्या है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है, आप इसको अपनी वोकेबलरी में ऐड कीजिए। द एलिफेंट इन द रूम इज ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे बड़ा जो लेवल पे, जिस लेवल पे रिफॉर्म की जरूरत है, वो गवर्नमेंट के लेवल पे ही रिफॉर्म की जरूरत है। व्हाई? Being a player in nearly half the disputes coming to court, reform will be stunted unless it learns to litigate less and becomes more amenable to settlement options. There is hope on this later score, but for now we move to another possibility of okay. This statement is not that important. यहाँ पे कह रहा है कि जो मेजर लिटिगेशन है केसेस में, वो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एज लिटिगेंट, दिस इज, यू कैन से कि इशू नंबर, हमने उधर 3 इश्यूज देखे थे, तो इसे आप कह सकते हैं दिस इज इशू नंबर 4, ठीक है। पेंडेंसी ऑफ केसेस के पीछे इशू नंबर 4 आप मार्क कर सकते हैं। हमने 3 देख लिया, चौथा इशू ये है कि बहुत सारे केसेस में क्या है कि गवर्नमेंट जो है, सरकारी एजेंसीज जो हैं, वही लिटिगेशन है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स केसेस में, छोटा से छोटा केस भी इनकम टैक्स केसेस कोर्ट में पहुंच रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि किसी ने बैंक का लोन रिफंड नहीं करा, तो उस मामले में ही गवर्नमेंट जो है, वो बैंक जो है, सीधा कोर्ट में केस कर रही है अपने पैसे रिकवरी के लिए, ठीक है। तो ये हर छोटे से छोटे केसेस में भी गवर्नमेंट जो है एक लिटिगेंट बन के आ रहा है, केस फाइल कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज व्हाई देयर आर अ लॉट ऑफ बैकलॉग ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशियरी। दिस इज द गाइगेंटिक बैकलॉग। व्हाट इज द गाइगेंटिक मीन? मतलब बहुत बड़ा, वृहत स्तर। Backlog, the enormous waiting room with its cavernous vaults. What is the meaning of cavernous? तो cavern is a word जिसका मतलब होता है बहुत गहरा, डीप, ठीक है। तो cavern से बना cavernous,
वॉल्ट का मतलब आप मान लो ऐसे कि एक बहुत मजबूत सी अच्छी सी तिजोरी, दैट इज कॉल्ड वॉल्ट। तो एक गहरी मजबूत सी तिजोरी, ठीक है। द इनॉर्मस वेटिंग रूम, वेटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, केसेस फाइनलाइजेशन में, विद कॉमनस वॉल्ट्स एंड स्टोरेज शेल्व्स एंड रैक्स बस्टिंग विद द क्लेम्स फॉर रिड्रेस एंड जस्टिस ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स एंड कॉजेस। तो एक फ्लावरी स्टेटमेंट है, आप ऐसे फ्लावरी स्टेटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, आप इन ज़्यादा फ्लावरी स्टेटमेंट के पीछे ना जाए तो बेहतर होगा। एक फ्लावरी सा स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि बहुत सारा पेंडेंसी ऑफ केसेस है, वेटिंग बहुत ज़्यादा है, इतने बड़े बड़े आलमीरा हैं, स्टोरेज शेल्फ्स, ठीक है, इतने बड़े बड़े आलमीरे हैं और रैक्स हैं, उन रैक्स पे फाइल्स पड़ी हुई है, लाखों लोगों को, लाखों नागरिकों का केसेस जो पेंडिंग है। तो ओवरऑल बैकलॉग ऑफ केसेस को थोड़ा फ्लावरी सेंटेंस में यहाँ पे लिखा गया है। लॉन्ग स्टे हियर इज बाय इटसेल्फ डिनायल ऑफ जस्टिस। जितने लंबे टाइम तक इन शेल्फ पे, इन आलमीरों पे फाइलें पड़ी रहेंगी, धूल खाती रहेंगी, उतने उतने समय तक जस्टिस का डिनायल होता रहेगा। Sometimes when the case is dusted for delivery to the judge table, the cause is forgotten or less crucial, or the original proponents are in another world, hopefully a litigation free one। कभी कभी टाइम इतना लग जाता है, समय इतना लग जाता है कि जब तक केस फाइनल स्टेज में पहुंचता है, तब तक जो मुद्दा है जिसके ऊपर वो केस शुरू हुआ था, उस मुद्दे की वैल्यू खत्म हो जाती है। या तो जिन लोगों के बीच में केस इनिशियली शुरू हुआ था, वो लोग इस दुनिया में रहते नहीं है, इस दुनिया से गुजर जाते हैं। आपने बहुत बार रिसेंटली एक केस आया था, केस विच कंटिन्यूड फॉर 70 years टिल इट गॉट फाइनल जजमेंट। और उस 70 साल में केस में जो लोग शुरू में इन्वॉल्व थे, वो कब के, उन्हें मरे हुए कितने साल हो गए थे, वो कब के गुजर गए थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगेन अ फ्लावरी स्टेटमेंट। ओवरऑल आप इसे कह सकते हैं कि अगर आपसे कोर्ट पूछे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट अगर कहा जाता है कि बैकलॉग या पेंडेंसी ऑफ केसेस का इम्पैक्ट क्या है, तो आप एक इम्पैक्ट दे सकते हैं। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि वन ऑफ द इम्पैक्ट इज दैट द actual impact is like when the judgment is getting delivered, its original beneficiaries or its original content becomes irrelevant। इस तरीके से आप एक इम्पैक्ट दे सकते हैं अपने मेन आंसर में। बट इट इज दिस स्पेक्टर ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस, अ टू ऑब्वियस साइन ऑफ फेलियर ऑफ डिलीवरी दैट हॉन्ट्स द जजेस। ठीक है, देर इज नथिंग गुड अबाउट द बैकलॉग। ठीक है, अच्छी सी सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ये सारे समस्याएं तो हैं, फाइल है, बहुत कुछ है, पेंडेंसी है, डिनायल ऑफ जस्टिस है, पर ये यही एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और यही एक्चुअल प्रॉब्लम है जो जजेस को हॉन्ट करता है, परेशान करता है, जुडिशरी को हॉन्ट और परेशान कर रहा है। और बैकलॉग होना अच्छी बात नहीं है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ खास नहीं है इसमें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द पिच फॉर मेडिएशन के, मेडिएशन। अब यहाँ पे राइटर साहब विल टॉक अबाउट मेडिएशन। मेडिएशन मतलब समझौता करने का, ठीक है। बट देर मे बी, unlikely as this may sound at first, this may be yet another instance of problem masking as a solution। Let us consider the process of mediation। कह रहे हैं कि मेडिएशन अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, बट अगर ठीक से नहीं किया जाए तो मेडिएशन में बी अ प्रॉब्लम मास्किंग एज अ सॉल्यूशन। मतलब दिखने में तो सॉल्यूशन लगेगा वो, बट एक्चुअली मेडिएशन विल बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे? तो वी विल डिस्कस बाय लुकिंग एट द प्रोसेस ऑफ मेडिएशन। नेसेंट एंड फ्लेजलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेंट? नेसेंट एंड फ्लेजलिंग मतलब होता है कि आप मान लो कि कोई नवजात सा, नेसेंट मतलब बिल्कुल नया सा, बिल्कुल नवजात सा, जो अभी अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं होने लायक है। ठीक है, बिल्कुल नवजात, बिल्कुल नाजुक, जिसे आप कह सकते हैं। इन द 90s, मतलब 90s में जो था मेडिएशन, इट वाज वेरी नाजुक, वेरी इनिशियल स्टेजेस में था। Mediation started to make its mark in 2005 in India, primarily as an adjunct of court sector। 90s के टाइम में मेडिएशन जो था वो बहुत अपने इनिशियल स्टेजेस में था, बट 2005 के आसपास से इट स्टार्टेड टू मेक इट्स मार्क एज एन एडजंक्ट। एडजंक्ट आप मान सकते हैं, एडजंक्ट का मतलब हो गया कि जो रेगुलर कोर्ट सिस्टम है उसके सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में mediation could started to be recognized as a supporting system of the regular court sector। ठीक है, तो इस चीज के पीछे परेशान नहीं होना है, 1990 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, दिस इज जस्ट लाइक राइटर का एक पर्सपेक्टिव है।
लॉयर लेड एंड जज गाइडेड, मीन्स वकीलों के द्वारा नेतृत्व किया गया और जजेस के द्वारा उसको गाइडेंस दिया गया. इट प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्प्यूटेंट्स टू सिट विद अ trained neutral in an atmosphere of confidentiality with no one imposing a result. तो ये स्थिति कुछ ऐसी थी कि जब ये रिकॉग्नाइज होने लगा तो वकीलों के द्वारा लिया गया, जजेस के द्वारा गाइडेड, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने लगा ये जिसमें जो डिस्प्यूटेंट्स थे, मतलब जो लोग थे जिन जो आपस में झगड़ रहे थे केस के मामले में, वो एक न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को रखा जाए, कोई एक दूसरे के ऊपर अपनी बात को इम्पोज ना कर रहा हो, थोड़ा बहुत गाइडेंस और नज दे करके पार्टीज को एक ऐसे ऑप्शंस के लिए तैयार किया जाए जो कि एक प्रैक्टिकल और फेयर हो और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो. तो ये बेनिफिट है. अब यहाँ पे एक तरीके से आप देख लो तो दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ मीडिएशन. बेनिफिट्स क्या है मीडिएशन के? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बेनिफिट्स हैं. तो इट प्रोवाइड्स एन एटमोस्फियर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है. नो वन इम्पोजिंग अ रिजल्ट. गाइडेंस एंड नजिंग. इट मेक्स पार्टीज कम अप विद ऑप्शंस. ठीक है. फॉर अ प्रैक्टिकल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन. म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो. ठीक है. तो एक दो बेनिफिट आप ऐड कर सकते हैं आप मीडिएशन के. A focus on long-term interest, some legal realism, and a dose of the rather grim alternatives to settlement propel the shift from attacking the other to jointly attacking the problem. तो म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन पे जब हम फोकस करने लगेंगे तो उसका सबसे बड़ा जो आउटकम होगा ये होगा कि जहां पार्टीज एक दूसरे पे अटैक कर रही थी, दे विल नाउ ज्वाइंटली स्टार्ट अटैकिंग द प्रॉब्लम. मतलब जो मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के उनके बीच में विवाद चल रहा है, वो उस मुद्दे को खत्म करने के लिए काम करेंगे, ना कि एक दूसरे को खत्म करने के लिए काम करेंगे. तो ये बड़ा अच्छा सा एक स्टेटमेंट है. हालांकि ये कहीं एग्जाम में आप चाहें तो ये टर्म इस टर्म को यूज कर सकते हैं. अगेन इट इज अ बेनिफिट ऑफ, आप कह सकते हैं मीडिएशन. मीडिएशन का थर्ड बेनिफिट कह सकते हैं. द केसेस कम फ्रॉम अ स्वैथ ऑफ. स्वैथ का मतलब पता होना चाहिए, हमने पहले भी वर्ड स्वैथ देखा है. स्वैथ ऑफ सिविल एंड कमर्शियल पर्सनल प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स. कह रहे हैं कि जो मीडिएशन है वो वैरायटी ऑफ केसेस में एप्लीकेबल है. ठीक है. अब आप अपनी जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीडिएशन. मीडिएशन होता क्या है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म फॉर यू. मीडिएशन क्या होता है, व्हाट इट इज, एंड व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया रिगार्डिंग मीडिएशन. ठीक है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ये आप लगा लो कि आपको खुद से अपना होमवर्क करना होगा ताकि आप मीडिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें. If you want me to make a video on it, please do comment below. The results are encouraging, so too is the. तो रिजल्ट जो है वो encouraging है, रिजल्ट बहुत अच्छा है मीडिएशन का. So too is the ready adoption by the bar of this alternative. Okay. Christened as appropriate method of dispute resolution as witnessed by the thousands of willing mediators. Christened का मतलब क्या होता है? Christened मतलब नामकरण. ठीक है. रेडी अडॉप्शन बाय द बार का मतलब जो बार होते हैं, जो वकीलों का जो एक आप कह सकते हैं कि वकीलों का एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो आप, बार. रेडी अडॉप्शन बाय द बार ऑफ दिस अल्टरनेटिव. इस अल्टरनेटिव का बार ने भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करा है. एंड वो उसका अब तो एक दूसरे तरीके से नाम दे दिया गया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर. ठीक है. तो एडीआर हैज बीन अ वेरी फेमस फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएस फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. तो एडीआर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप एडीआर के ऊपर भी अपने कीवर्ड में इंक्लूड कर लीजिए, उसके ऊपर भी काम कीजिए. ठीक है. इट इज नाउ टू मूव टू फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल एवेन्यूज, drawing in better usage from business, government, and other disputants, and in the process providing gainful remuneration to practitioners of this new vocation. कह रहे हैं कि भैया ये जो मीडिएशन था, जो अब तक लो प्रोफाइल तरीके से चल रहा था, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनलाइज कीजिए. प्रोफेशनलाइज कीजिए इसको, मतलब इसमें प्रोफेशनल लोगों को इंक्लूड कीजिए. ठीक है. और जो लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं उनको अच्छे से रेमुनरेशन दीजिए. ठीक है. रेमुनरेट कीजिए. रेमुनरेट मतलब उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए.
वकील साहब या जो भी मीडिएटर है, जो भी जज है, जो इसमें काम कर रहा है, जो इसके रिज़ॉल्यूशन के लिए एफर्ट लगा रहा है, उसको अच्छे से रेम्युनरेट कीजिए, उसको अच्छे से रिकॉग्निशन दीजिए, रिकॉग्नाइज़ कीजिए उनके एफर्ट्स को, ठीक है? कहने का मतलब कि जो एडीआर का सिस्टम है, उसको थोड़ा-सा और प्रोफेशनलिज़्म लेकर के आइए उसमें। But certainly, mediation has caught on in the judicial system, and there is hardly any judge who does not speak of its merits. और ठीक है, जेनरिक सा स्टेटमेंट है कि मेडिएशन का इंपॉर्टेंस इतना है कि ऑलमोस्ट सारे जजेस इसके बेनिफिट और मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। गेटिंग इट टू वर्क मीन्स वे फॉरवर्ड बता रहा है कि मेडिएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो टू गेट टू द पॉइंट फाइनली, फॉर द जज द बैकलॉग इज अ बर्डन, जज के लिए बैकलॉग बर्डन है। फॉर द मेडिएटर इट इज अ ट्रेजर ट्रोव, मेडिएटर के लिए ट्रेजर ट्रोव है। जज के लिए बर्डन है बट मीडिएटर के लिए ट्रेजर ट्रोव है, बिकॉज उस मीडिएटर के पास जितने ज़्यादा ट्रेजर केसेस आएंगे उतना बढ़िया होगा। तो जितना ज़्यादा बैकलॉग ऑफ केसेस है तो उतना ही ज़्यादा काम है मीडिएटर के पास, ठीक है? सपोज कीजिए कि 10 मीडिएटर आज के टाइम में है, ठीक है, और बैकलॉग ऑफ केसेस 1 लाख है, ठीक है, तो मीडिएटर के लिए तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई ना ये। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब ट्रेजर ट्रोव, मतलब एक खजाना हाथ लग गया कि भैया काम करने को बहुत ज़्यादा है। अब उनकी इनकम रेमुनरेशन उन चीज़ों को लेकर के अच्छा हो तो ज़्यादा एनर्जी से उस पे ऊपर काम करेंगे। इन फ्रंट ऑफ अस और रादर हिडन इन कटली डंजन्स आर दी हंड्रेड्स ऑफ केसेस वी जस्ट हैव टू बी असाइन टू मीडिएटर्स टू हैंडल। डंजन्स का मतलब मान के चलो आप कि एक ऐसा जेल, भूमिगत कैद खाना मान लो आप। तो इसका लिटरल मीनिंग तो होता है भूमिगत कैदखाना, ऐसा जेल जो कि अंडरग्राउंड है। लेकिन इस केस में, इस कॉन्टेक्स्ट में, पेंडेंसी ऑफ केसेस में कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि कोर्ट के में कहीं न कहीं दबे हुए हैं। कोर्ट कचहरी में, कोर्ट की फाइलों में, कोर्ट के अलमीरे में, कोर्ट के डेस्क डेस्क पे, टेबल पे, कहीं न कहीं सैकड़ों केस, हंड्रेड्स ऑफ केसेस वहाँ पे छिपे हुए हैं, धँसे हुए हैं। और उनके उन्हें उन केसेस को ही मीडिएटर्स को असाइन करना ही बाकी है। तो वही बात मैंने अभी जो बताई, बहुत सारे केसेस हैं और मीडिएटर को असाइन करना ही बाकी है। एंड द मीडिएटर्स आर देयर इन सफिशिएंट नंबर्स एंड बैक्ड बाय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो कह रहा है मीडिएटर्स की कमी नहीं है हमारे पास, मीडिएटर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर उनको हम वो सारे केसेस असाइन नहीं कर पाए हैं अच्छे से। आज जल्दी से असाइन कर देंगे तो उनका रिजोल्यूशन हो जाएगा, मीडिएटर्स के लिए बढ़िया, और बैकलॉग ऑफ केसेस भी खत्म हो जाएंगे। ऑल इट नीड्स इज अ सिंपल सिस्टम ऑफ प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज केसेस, आस्किंग पार्टीज टू चूज देयर मीडिएटर और साइनिंग देम अ ट्रेन एंड एक्सपीरियंस्ड वन, एंड ensuring that a resolution fee is paid to for the service। तो चैलेंज कहाँ है भैया? मतलब मीडिएटर हमारे पास है, मीडिएटर के काम करने के लिए बैकलॉग ऑफ केसेस ही हमारे पास है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो यहाँ पे आ जाता है आपका जो हमने देखा डाटा गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट, कि हम हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जुडिशरी में जिसके बेसिस पे हम प्राइमरीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो कौन-कौन से केसेज़ हैं और कौन-कौन सी पार्टीज़ हैं, जिनको अप्रोच किया जाए और उन केसेज़ और उन पार्टीज़ को मीडिएटर के हवाले कर दिया जाए कि भैया आप अपना जो केस है, वो मीडिएटर से डील करवा लो, रेगुलर कोर्ट से डील मत करवाओ। ठीक है, तो बहुत अच्छा बात कहा गया है यहाँ पे कि ट्रेजर ट्रोव तभी होगा जब हम उन केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा सिस्टम बनाएँगे और उन केसेस को हम मीडिएटर तक पहुँचाएँगे ताकि जल्दी रिज़ॉल्यूशन मिले। और सिर्फ़ पहुँचाएँगे नहीं, एक अच्छा-सा रीज़नेबल फ़ी भी पेड करेंगे उस मीडिएटर को। रिकॉग्निशन एंड रेम्यूनरेशन दोनों चीज़ इंश्योर करेंगे। उन्हें उनकी आमदनी भी होनी चाहिए, उन्हें सैलरी भी अच्छी देनी चाहिए और उनको रिकॉग्नाइज़ भी करना चाहिए। उन्हें एक अच्छी पहचान भी मिलनी चाहिए कि भैया ये मीडिएटर साहब हैं। सिर्फ़ जजेस को ही पहचान नहीं मिलनी चाहिए। When you compare the cost of mediating a case for the system and for the parties, it is a fraction of litigating the case। कह रहा है कि मीडिएटिंग अ केस का जो खर्चा है, वो नॉर्मल कोर्ट खर्चे से बहुत कम होता है, ठीक है? एक अच्छा-सा बेनिफिट है मीडिएशन का, आप कह सकते हैं कि बेनिफिट वाले पॉइंट आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मीडिएशन, तो अभी हमने 2 मीडिएशन के बेनिफिट उधर देखे थे, तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द थर्ड बेनिफिट ऑफ मीडिएशन। You do not need vast logistical and administrative infrastructure, and you are saved multiple hearings spread over indeterminable time spans। ठीक है, वही थर्ड वाला बेनिफिट है कि ज़्यादा कॉस्ट की कमी है। कॉस्ट सिर्फ समय के मामले में नहीं, समय की ही बचत है, पैसों की बचत है, एनर्जी की बचत है, ठीक है? और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, मीडिएटर जल्दी से रिज़ॉल्यूशन हो जाएगा। भाई मीडिएटर क्या होते हैं? भैया एक बंदा आ गया, ठीक है? इसने दोनों पार्टीज़ की बात सुनी,
ये दोनों पार्टीज ए और बी आपस में झगड़ रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर के। मीडिएटर साहब के पास गए, मीडिएटर साहब ने कहा कि भैया आप दोनों की बातें हमने सुन ली, मेरे हिसाब से आपके पास सॉल्यूशन ये है, एक दो तीन, इनमें से कोई भी एक दो चार सॉल्यूशन ले लो, आपस में समझौता करो, काम खत्म करो। तो ये होता है पूरा मीडिएशन का कॉन्सेप्ट। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी मेंस। Most cases in mediation take just a handful of sessions. Complex one takes more, but this is nothing when compared to the boxes of litigation. ठीक है, वही टाइम की बात कही जा रही है, समय ज़्यादा नहीं लगता मीडिएशन में, जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। एंड when it works, the results achieved in mediation outweigh by far anything you can get in litigation. Not just a practical solution which both parties accept, but often a restoration of relationship. एक बहुत अच्छा सा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि सिर्फ केसेस, जो कोर्ट केसेस होते हैं, वहाँ पे जो रिज़ॉल्यूशन होता है, जो जजमेंट होता है, उससे एक ना एक पार्टी दुखी ज़रूर रहता है। कि एक को सॉल्यूशन मिल गया, एक के फ़ेवर में आ गया, दूसरे को नहीं मिला, ठीक है? एक पार्टी नाराज़ होता है, एक पार्टी दुखी होता है। बट जब हम किसी चीज़ का मीडिएशन करते हैं, तो उस केस में क्या है, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की सहमति से एक समझौता करती हैं, और जब वो समझौता करती हैं, तो दोनों पार्टीज़, पार्टी मतलब ए और बी, दोनों पार्टीज़ के बीच रिलेशनशिप भी रीस्टोर होता है और सॉल्यूशन भी प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ बेनिफिट ऑफ मीडिएशन, आप कह सकते हैं। सो परहैप्स इट इज टाइम वी टेक द कीज, रिक्वेस्ट आवर चेंबर ऑफ हॉरर्स एज द बर्थिंग प्लेसेस ऑफ मीडिएशन। अभी जो हमारे चैम्बर्स ऑफ हॉरर्स हैं, जो यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कोर्ट्स को, जो जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं, अभी वो चैम्बर ऑफ हॉरर कहा जा रहा है, बहुत डरावनी स्थिति वहाँ पे है। उन्हें रिक्रेशन कर दीजिए, उनका नामकरण कर दीजिए, और उन्हें कह दीजिए मीडिएशन का जन्म स्थान, बर्थिंग प्लेस ऑफ मीडिएशन, and apply the principle by which mediators live and work, turning the problem into opportunity for solution. ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। आप मीडिएशन को कर दीजिए ऐसे, और मीडिएशन जो है कि बहुत एक प्रॉस्पेरस, आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन बन जाए, प्रॉस्पेरस मोड ऑफ सॉल्यूशन बन जाए लिटिगेशन को कम करने का। तो दिस वाज द ओवरऑल आर्टिकल। इस आर्टिकल में बेसिकली हमने देखा दो तीन चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ देखी। पहले तो हमने बैकलॉग ऑफ केसेस को देखा कि बैकलॉग ऑफ केसेस, हमने कुछ फैक्ट्स देखे शुरुआत में, ठीक है। बैकलॉग ऑफ केसेस क्या है, और एडवर्सरियल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, और क्या इश्यूज हैं, बैकलॉग ऑफ केसेस हमारे यहाँ क्यों है, रीजंस हमने देखे, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, बैकलॉग ऑफ केसेस का। फिर हमने एडहॉक जजेस, एक रेफरेंस आया था इस आर्टिकल में एडहॉक जजेस का, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए होमवर्क है। डाटा गवर्नेंस देखा, और फिर हम आ गए कि मीडिएशन के बेनिफिट्स क्या हैं, मीडिएशन क्या होता है, हमने कॉस्ट वाला एस्पेक्ट भी देखा। तो this was the overall idea of the this article related to how to resolve backlog of cases by means of mediation. तो इससे कुछ बेसिक नोट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, that I will be sharing over here. You can go through that.